Hello students, today I'll be explaining the poem Wind of class 9 written by Subramanya Bharti. Chinnaswamy Subramanya Bharti, also known as Bhartiyar, was born on 11th December 1882 and he died on 11th September 1921. He was a Tamil writer, poet and journalist, an Indian independence activist and social reformer from Tamil Nadu. In this poem, the poet Subramanya Bharti advises us to be strong in mind as well as body. The wind in the poem symbolizes the difficulties and challenges that we face in our life. The poet suggests that we should face them boldly and stay firm in difficult situations. The poet describes the raw force of the wind in this poem. The wind is thus a symbol of power or force. Now let's get on to the poem. Wind, come softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. यहाँ पे poking fun का मतलब है making fun of something और weaklings का मतलब है कि जो पर्सन बहुत वीक है. तो यहाँ पोएट विंड से बातें कर रहा है और बोलता है विंड से कि आप सॉफ्टली आओ. और विंड को हमेशा सॉफ्टली आना चाहिए, स्ट्रांगली और लाउडली नहीं आना चाहिए. हमेशा सॉफ्ट और सटली विंड को आना चाहिए. और वो विंड से कहता है कि विंड बहुत पावरफुल है, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है. वो शटर्स ऑफ द विंडोज़ को ब्रेक कर देती है, पेजेस को यहाँ वहाँ स्कैटर कर देती है. और जब विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल विंड ब्लो हो रही हो तब सारी बुक्स को वो नीचे शेल्फ से गिरा देती है. तो यहाँ पोएट विंड की पावर के बारे में बात कर रहे हैं. वो कहते हैं कि विंड हमेशा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, बहुत बड़ा बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकती है. जब भी स्ट्रॉन्ग विंड हो तो जो भी वीक चीज़ें हैं लाइक छोटे से प्लांट्स हो या छोटे से बच्चे हों वो बहुत डर जाते हैं. और प्लांट्स हमेशा गिर भी सकते हैं और वो बच्चों को चोट भी लग सकती है. यहाँ पर वो कहते हैं कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो विंड को छोटे से बच्चे की तरह रेफ़र करते हैं और उनको सॉफ्टली आने के लिए कहते हैं. पर धीरे धीरे जैसे पोएम में हम लोग आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि विंड बहुत डिस्ट्रक्टिव है. जस्ट लाइक द यूथ, एक यंग बॉय और यंग गर्ल कैसे होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ वायलेंस होते हैं और फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं. द सेकेंड स्टैंजा, फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो यहाँ पर crumbling का मतलब है falling down और to cause something to break. और राफ्टर का मतलब है स्लोपिंग बीम्स विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. यहाँ पर क्रम्बलिंग बहुत बार रिपीट किया है. क्यों? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू ले स्ट्रेस कि स्ट्रॉन्ग विंड में हर एक चीज़ क्रम्बल हो जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है. So the writer is saying that when wind is very powerful, it is very strong, it leads to breakage of everything. Houses जो वीक हो चुके हैं, डोर्स जो वीक हो चुके हैं, जो बीम्स जो रूफ को सपोर्ट करती हैं वो अगर वीक हो चुकी हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स अगर वीक हो चुके हैं तो ये सारी चीज़ें गिर जाती है जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है. All the bodies of people fall, animals, lives, hearts, all are falling. So he's saying that everything crumbles when there's a very strong wind. Everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. So the poet is saying कि अगर weak person है वो कोई भी adversity को face करने में बहुत problems face करता है. और अगर आप strong person हो, internally strong, आपका character strong हो, आपका mind strong हो तो आप कोई भी adversity को आराम से face कर सकते हो. पर weak person, when he faces any adversity or challenge in life, he breaks down and falls down. The next line, the wind god winnows and crushes them all. Winnows का मतलब यहाँ क्या है? To break grain free of chaff, separate grain from husk by blowing on it. See the picture? The poet is addressing the wind as wind god. और वो बोलते हैं कि विंड एकदम पावरफुल गॉड है. जैसे हम लोग बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक अ गॉड. पवन को हम लोग गॉड भी बोलते हैं.
एंड ही सेज कि जो विंड है वो विनो करती है, वो सब आदमियों को विनो करती है। विनो माने उसको शैफ में से सेपरेट करती है, और जो वीक लोग हैं वो लोग फॉल डाउन करते हैं और क्रश हो जाते हैं। जस्ट लाइक वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शैफ, द विंड गॉड separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak, frail, they get crushed. Next stanza. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. So यहाँ steadfast का मतलब क्या है? firm. द पोएट यहाँ बोलता है कि विंड से हम लोग को दोस्ती कर लेनी चाहिए। ही सेज जो भी हमारे लाइफ्स में प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हम लोग को उस प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। हम लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए कि हम लोग का घर जब भी हम बनाए, स्ट्रॉन्ग घर बनाना चाहिए। डोर्स जब हम बनाए तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमारे घर के डोर्स, कि विंड उसके अंदर ना जा सके। इसी तरह से हम लोग को अपनी बॉडीज़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, हार्ट्स को फर्म बनाना है, कि कोई भी चैलेंज हमारे सामने आए तो हम उसको आराम से फेस कर सकें, ईज़िली फेस करके उसको ओवरकम कर सकें। और फिर वो कहते हैं हम लोग इतना हम लोग को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सारे चैलेंजेस हम लोग आराम से फेस कर सकें अगर हम विंड को हमारा फ्रेंड बना ले। फिर द विंड विल नॉट फील दैट वी आर ट्रबलसम। वो विंड हमारे लिए ट्रबलसम नहीं रहेगी क्योंकि वो हमारी फ्रेंड बन चुकी है। नाउ द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। So towards the end of the poem, what the poet wants to say? The poet ने विंड को एक अच्छे से एक ऊंची जगह पर रख दिया है, ऊंचे स्थान पर रख दिया है। He is comparing the wind to God. He says that wind is God and we praise wind every day. He says that everything that is weak gets finished off in the face of a strong wind, and all the things that are strong फ्लरिश एंड ग्रो टू बिकम स्ट्रॉन्गर। तो विंड की तरफ से वो एक मैसेज हम लोग को दे रहा है, हमारी लाइफ का एक मैसेज दे रहा है। वॉट ही सेइंग कि हम लोग को कभी कभी चैलेंजेस फेस करने के टाइम पर या एडवर्सिटीज़ या प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, हम उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार होने चाहिए। हम लोग अपना सेल्फ, हमारी बॉडी को एकदम फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि वो हमारी बॉडी ये सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी से फेस कर सके, इस चैलेंजेस को फेस कर सके। और एक बार हम लोग स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो हम लोग के आगे कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, हम लोग उसको ईजिली ओवरकम कर देंगे। देन हम लोग विंड के संग फ्रेंडशिप कर सकते हैं, और जब विंड हमारी तरफ ब्लो हो, हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं कि ये इस तरह की विंड हमको कुछ भी नहीं कर सकती है। ऊपर से ये विंड हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। And then we will be happy that we had these challenges in our life because they helped us to grow stronger and better. तो here the poet ने विंड को एक तरह से हम लोग की लाइफ में इन्वॉल्व इस तरह से किया है कि विंड हमारी लाइफ में हमारी बॉडीज़ को हार्म कर सकती है। कब? जब हमारी बॉडीज़ वीक हो, जब हमारा माइंड वीक हो। पर अगर हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट भी विंड हम लोग को कुछ नहीं कर सकती। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग विंड के सामने हम लोग हमेशा आराम से खड़े रह सकते हैं एंड फेस कर सकते हैं। सो द पोएट वांट्स टू से स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज, बट इट्स एनर्जी कैन बी ऑफ ग्रेट यूज वंस वी मेक फ्रेंड्स विद इट। This we can do by taking proper precaution and measures. For instance, we can build stronger homes, keeping in mind the fatalities of the wind. We can also build windmills to harness its energy that can be used to generate electricity. तो हम लोग को हमेशा जो भी हमारे सामने ऐसी चीज़ें आएँ जो हम लोग को क्रम्बल करने की कोशिश करें, तो उससे पहले हम लोग को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि वो हमको क्रम्बल ना कर सके और हम उसका फ़ायदा उठा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम बाय सुब्रमण्य भारती। थैंक यू एंड बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।